Assalamualaikum. I'm Bakhtavar, your English teacher for class 3. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today we are going to talk about an application to the principal for a marriage ceremony, and then we are going to talk about singular plural page number 30, 31, 32 on your grammar books, in which we are converting Y with IES and F or FE with VES. First of all, we are going to talk about application to attend marriage ceremony. All the applications have got three particular portions. This is portion number 1, portion number 2, or you can call portion a body. Body number 1, body number 2, and body number 3. In body number 1 and body number 3, we need to be very much keen regarding the format of the body number 1 and body number 3. How? The principal, then we have to put a comma in the very end of it, and then if we are writing Unique Junior School, if you notice, I am writing these first alphabets in a capital form. T is capital, principal mein, P is capital, then we have got Unique Junior School, and all the very first alphabets of the words are capital. Then I have written Lahore and I have put a full stop in the end. Lahore में L capital है. ये जो सब कुछ है आप देख रहे हैं कि इधर मैंने डॉट लगाया. आपने देखा कि फर्स्ट बॉडी में द प्रिंसिपल के बाद कॉमा आएगा, देन यूनिक जूनियर स्कूल के बाद फिर कॉमा आएगा, और इसके बाद लाहौर में मैंने फुल स्टॉप लगाया. और जो पहले इन वर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स हैं, आई हैव रिटन देम इन अ कैपिटल फॉर्म. इट इज़ फॉर अ रीज़न कि आप लोगों ने ये फॉर्मेट आपको दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि जी इस फॉर्मेट को फॉलो करें, एंड यू आर सपोज टू फॉलो द सेम फॉर्मेट इन योर पेपर्स और इन योर टेस्ट और इन योर कैजुअल लेटर और एप्लीकेशन. आपने इस फॉर्मेट को एज इट इज़ ही लिखना है विदाउट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ चेंज ऑन योर ओन. फिर आप योर्स ओबीडियंटली कॉमा, इसमें कोई कॉमा नहीं आएगा, वाई ही कैपिटल आएगा, और पूरी लाइन में देखिए कि सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं दे आर रिटन इन अ स्मॉल फॉर्म, एक्स वाई जी, देन यू विल पुट अ डॉट ओवर हियर, और फिर आपने डेट लिख देनी है. जो हमारे पास सेकेंड पोर्शन होता है, the second body that we have, it is very much creative. You can add details on your own, whatever problem you have, the reasoning you are giving, any sort of details you want to add apart from your book. If you have got a good grammar skills, you have got good grammar structure, you have got a good nice vocabulary, then you can add things in it. इस पोर्शन में आप अपने से लिख सकते हैं, इसमें आप चेंजिंग्स ला सकते हैं जो मिडल बॉडी होती है एप्लीकेशन की. लेकिन फर्स्ट बॉडी में और लास्ट बॉडी में आप अपने से कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं ला सकते, या आपने एज इट इज़ ही लिखना होता है. अगर आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं और इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ऑन योर ओन, यू वांट टू ऐड योर ओन क्रिएटिविटी, ऑन डिटेल्स इन इट, तो यू कैन यूटिलाइज बॉडी नंबर 2. ठीक है, ऐसे आप अपनी एप्लीकेशन को वाइंड अप करेंगे. और एंडिंग का फॉर्मेट ये है, जो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ओ को कैपिटल कर देते हैं, यहाँ कॉमा नहीं लगाते. ये जो आप पैटर्न करते हैं ओ को कैपिटल करने वाला और यहाँ कॉमा, ये गलत हो जाता है और इस पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. इफ़ यू आर राइटिंग दिस टू पोर्शन इन द सेम वे एंड विदाउट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन द फॉर्मेट, यू कैन सिक्योर द टोटल मार्क्स दैट दीज बॉडीज हैव. ठीक है, अगर आपको 2-2 या 3-3 मार्क्स इन 2 बॉडीज़ के मिले हैं, यू कैन सिक्योर द टोटल मार्क्स आउट ऑफ इट. राइट, मिडल बॉडी में आप चेंज कर सकते हैं, 2 बॉडीज़ में आप चेंज नहीं कर सकते, ना फर्स्ट में ना थर्ड में. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट singular plural which are on your grammar page number 30, 31 or 32. Singular plural are very much simple, like they are very much simple to understand. What does singular mean? That means anything that's single, that's one. This pen is, it's singular, right? It's single, it's one. And plural, that means multiple, that means something that is more than two or more than two, right? That is not single, that is in a multiple form, in multiple quantity, that is going to be plural. अब होता क्या है, हमारे पास 3 टाइप्स के बेसिकली सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे 2 टाइप्स में. जब y को हम IES में कन्वर्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं और किस बेस पे करते हैं. फिर हम F और FE को VES में कन्वर्ट करते हैं, किस बेस पे करते हैं, हम इन पे बात करेंगे. जो इसकी थर्ड टाइप है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे. अब होता क्या है, कोई भी हमारे पास वर्ड, जो भी सिंगुलर वर्ड हो, अगर वो कॉन्सोनेंट के साथ फॉलो कर रहा है और उसका जो लास्ट वर्ड है, फॉर एग्जांपल इसमें y है और हम देखेंगे y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं हमारे पास, कितने 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. कॉन्सोनेंट साउंड्स आपकी ABC में, आपके अल्फ़ाबेट्स में वो सारे साउंड्स होते हैं जो वाउल्स से हट के होते हैं. 5 वाउल्स हैं, उनके अलावा जितने साउंड्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स में फॉल करते हैं.
अब क्या होता है हम देखते हैं कि हमारे पास जो लास्ट में y आया है, डू वी हैव द वेरी लास्ट अल्फ़ाबेट इन द वर्ड वेदर इट्स कॉन्सोनेंट और वाउल। अगर ये कॉन्सोनेंट है, ये p है, राइट, इसमें देखें ये r है। अगर तो ये कॉन्सोनेंट है और ये y से पहले आ रहे हैं, y से पहले आने वाला जो भी साउंड है, जो भी सिंगल अल्फ़ाबेट है, वेदर इट इज़ r, p, b, whatever it is, if it is a consonant sound then you are going to put IES there, right। जैसे ये पपी है, हमने देखा कि जी y है, y से पहले हमारे पास आ गया p, p क्या है, p is a consonant sound, then we have got y, y से पहले आ गया r, r क्या है, r is also a consonant sound, ये वाउल नहीं है। तो जब हमने देखा कि ये हमारे पास r है y से पहले, तो हम इस y को क्या करेंगे, IES में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और किस बेस पे हम y को IES में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे पास y से पहले जो एक अल्फ़ाबेट था, सेकेंड लास्ट अल्फ़ाबेट, वो कॉन्सोनेंट था, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड्स एंडिंग विद f और fe। हमारे पास सिंगुलर में जितने भी वर्ड्स आते हैं जिनके एंड पे f आए या फिर fe आए, हम लोगों ने उसको VES से तब्दील कर देना है, उसको उसमें कन्वर्ट कर देना है। जैसे हमारे पास वी हैव गॉट दिस वर्ड वुल्फ, इसके एंड पे f आ रहा है, लीफ है, इसके एंड पे f आ रहा है, नाइफ है, इसके एंड पे fe आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न व्हाट यू आर गोना डू इज f को VES में आप चेंज कर देंगे। इधर f लीफ है, f को क्या करेंगे, VES में आप कन्वर्ट कर देंगे। देन वी हैव गॉट FE, आप इसको क्या करेंगे, VES में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जब आप सिंगुलर जो f या FE पे ख़त्म हो रहे हैं, उन सिंगुलर को जब आप प्लूरल में तब्दील करेंगे तो आप उन f या FE को VES के साथ चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये दो हमारे पॉइंट्स हैं, ये कुछ दीज आर सम बेसिक रूल्स व्हेन यू आर डूइंग सिंगुलर प्लूरल्स इन योर बुक्स और इन योर पेपर्स। These are some simple forms, some simple rules that you are going to like learn. These are 3 rules, and apart from these rules, there is like one another rule which you are not going to learn in this particular lesson. इसमें आप लोग सिर्फ ये दो हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं। एक y को IES किस बेस पे बनाया जाता है, y को IES बनाया जाता है कॉन्सोनेंट की बेस पे। अगर तो आपके पास y से पहले जो सेकेंड लास्ट अल्फ़ाबेट है वो एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, IES के साथ चेंज कर देंगे। देन इन द अदर रूल हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास f और FE पे कोई सिंगुलर वर्ड, कोई नाउन ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस f या FE को VES के साथ कन्वर्ट कर देंगे। So that was all about your today's lesson. If there is something that you didn't understand, you can just call your in charge and ask her about the query. Thank you.